welcome to the online class of School of Open Learning. Myself, Guneet Kaur, and today we will be starting chapter number 8, that is Final Accounts. And अभी तक in the last two sessions हमने discuss करा the introduction of financial accounting. हमने पढ़ा what is accounting process, and what are the accounting concepts and conventions. We also talked about important terms, important concepts like IFRS. हमने discuss करा accounting standards क्या होते हैं, what are the purpose of accounting standards. So basically, we have covered the theory portion of this book, the starting theory portion, and today we'll be starting with the practical chapter, that is final accounts. And in the last class हमने इसका एक brief start करा था, that what is trading account, what is P&L account. हमने इनका pro forma भी discuss करा. So let's quickly revise. And as always, the last 10 minutes of the class will be for the doubts. तो जो भी आपके doubts रहेंगे, जो भी आपकी queries होंगी, we will discuss in the last 10 minutes. And for your queries, you can write it in the live event Q&A section. आप question and answer section में आप अपना comment, जो भी आपके doubts हैं, queries हैं, you can write it there, and then we will discuss. As of now, मैंने अभी तक link share करे हैं, 2 links हैं, but as somebody told me that when we click on that link, only one page is showing up. So मैंने भी check करा that only one page is coming up. So don't worry. In the next class, I will reshare the link and I will check it once before sharing with you. Right? So let's start with the chapter, and all of your queries will be covered in the last 10 minutes. So till that time, please let's focus on the chapter. So preparation of final accounts, sole trader. So students, we know, हमें पता है that final accounts means 3 accounts. जब भी हम final accounts की बात करेंगे, we will be talking about trading account, P&L account and balance sheet. So in this chapter आपके पास proper questions आएंगे with adjustments in which you have to prepare the trading account, P&L account and a balance sheet. So जैसे हमने final accounts के questions हमारे school time में करे थे, just like that proper questions आएंगे with all the adjustments. So quickly revise करते हैं what is a trading account. So trading account tells us about the gross profit or the gross loss incurred by the firm during a year. So trading account से हमारे को gross profit और gross loss के बारे में information मिलती है. So you can see the pro forma trading account. So trading account में debit side हमारे पास आएंगे opening stock of raw materials, work in progress, finished goods. Then we have purchases. अगर कोई भी हमारी purchases returns हैं, तो या तो हम उसे credit side पर लिखें या हम उसको डेबिट साइड में से ही डिडक्ट करें. Purchases less purchases returns or return outward. Then if there are any direct expenses. So direct expenses क्या होते हैं? The expenses incurred in acquiring and bringing goods purchased to the business premises. अब आपने तो अपने goods purchase कर लिए. Now to bring that goods, जब उन goods को आप अपने business premise में लेकर आएंगे, तो उसके regarding जो जो expenses हुए, आपने goods खरीद लिए. Now to bring that goods to your business, आप अपने business premises में अपनी location पर जब वो सामान लेकर आओगे अपने purchases, so उस regarding जो भी आपके expenses होंगे ना, that will be your direct expenses. Like freight is your transportation. कार्टेज पे करा है आपने, कैरेज इनवर्ड, परचेज, अगर कोई आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे करी है, क्लीनिंग चार्जेस, डॉक चार्जेस. डॉक ड्यूज जब आपका सामान बाय शिप आ रहा है, लाइक इंपोर्ट ड्यूटी अगर आप बाय एयर आपका सामान आ रहा है, then excise duty and then octroi. So basically these are the direct expenses which are part of the trading account. Next, factory expenses. अगर कोई factory expenses हैं, like
lighting, heating, rent, rate, insurance of factory. तो students हमेशा अपने ध्यान में रखना है that all the direct expenses comes under the trading account, and अगर कोई भी factory expenses करे गए हैं like lighting, heating, rent and rate of factory से related, then also they'll come under the trading account. Then if credit side is more, then there is a gross profit, right? In the credit side trading account में हम क्या show करते हैं? Sales less sales return, or return inwards. So always remember, purchases return or purchases returns outward, sale return or return inward. So जब आपका सामान आपके पास वापस आता है, sale return, so it is coming back to you, इसको हम बोलते हैं return इनवर्ड. और जब हम परचेजेस रिटर्न करते हैं तो हमने सामान बाहर से खरीदा, अब हम उसे वापस दे रहे हैं, सो आउटवर्ड, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड. So then we have closing stock, and then if debit side is more, then there is a gross loss. So ये प्रोफॉर्मा था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का. हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट or gross loss from the purchase and sale of goods during an accounting period. So हमारे एक accounting period में जो भी gross profit और gross loss incur हुआ, to know about that we prepare the trading account. Now let's talk about the P&L account. And now since हमें पता है gross profit and gross loss के बारे में we come to know up from the trading account. Now profit and loss account tells us about the net profit or net loss incurred by the firm. Now after the calculation of gross profit or gross loss, the next step is to prepare the P&L account to determine or find out the amount of net profit of the business enterprise. So ये हमें सबको पता है that once we have prepared the trading account, अब हमारा next step क्या होगा? To prepare the P&L account. So this P&L account tells us about the net profit or net loss incurred by the firm. So let's look at the pro forma for the P&L account. So in the P&L account, in the debit side, we have all the indirect expenses. See students, अगर हमारे पास trading account में सारे direct थे, so all the indirect comes under the P&L account, like advertising, bad debt, carriage outward, warehouse. Students, carriage inward will always be a direct expense. ये ध्यान रखना आप. Carriage inward हमारा हमेशा trading का part होगा, and carriage outward will be the part of the P&L account. So other expenses like bad debt, cash discount allowed, advertising, motor expenses, bank charges, interest paid, if there's any audit fees, telephone, accountancy fees, any other expenses, वो सारे हमारे P&L account के part होंगे. See, P&L account is debited. कब P&L account में debit side में हम लिखेंगे जब there is a gross loss. तो gross loss हम trading account से transfer करेंगे. If there are any establishment expense, अगर आपने कोई rent rate अपने office का rent पे करा है, rate taxes पे करे हैं, then administrative expenses हैं salaries, insurance, printing, stationery, postage, telegram. If there are any selling and distribution expenses, carriage, advertisement, freight, if there are any maintenance expenses, repair, depreciation of fixed assets, financial expenses, miscellaneous expenses. So all these things will come under the P&L account. Now in the credit side, जब भी trading account में gross profit होगा, we'll transfer the gross profit from the trading account. And then if there are any indirect incomes like cash discount आपको receive हुआ है, interest receive हुआ है, then if there is any incidental income again, if there is any rebate, interest receive, interest on dividend, rent receive, gain on sale of asset, discount on creditor. So जब भी कोई भी indirect income होगी, that will be on the credit side, और debit side में आपकी सारी
expenses होंगे, all the indirect expenses. Now students, अब हमारे पास आ जाएंगी adjustments, जो बहुत important है. Before starting or before proceeding with the questions, difference between outstanding income and accrued income. So students, ये तो बहुत important terms है. Outstanding income. So outstanding income means that amount of income which is due and receivable but not received. So any income which has become due but not received. Supposedly आपकी salary है for फॉर फुल ईयर, लाइक अभी हमारा जनवरी चल रहा है, सो आपकी 12 मंथ्स की सैलरी है फ्रॉम अप्रैल अप्रैल 2020 टू मार्च 2021. सो दिस इज वन 12 मंथ सैलरी. सो अकॉर्डिंग, अगर सपोजिटली दिसंबर तक सैलरी पे कर दी है, राइट, एंड जनवरी की सैलरी जो है which has become due but not yet received. तो जनवरी तक आपकी जो सर्विसेज है वो फर्म ने ले ली हैं, लाइक इट्स 18 जनवरी. आप सपोज करके चलो कि अभी फेब्रुअरी मंथ चल रहा है एंड जनवरी की सर्विस हो गई है, एम्प्लॉय ने पूरा जनवरी काम करा है एंड ड्यू हो चुकी है, बट that person has not yet been paid. So ये एक हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया अगर हमने किसी की सैलरी पे करनी है. अगर आपको सैलरी मिलनी है, सो दैट इज योर आउटस्टैंडिंग इनकम. फॉर एग्जाम्पल दिसंबर जा चुका है, दिसंबर का एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी तक आपको दिसंबर की सैलरी नहीं मिली. सो दिसंबर की सैलरी हैज बिकम ड्यू बिकॉज अब जनवरी आ गया है, दिसंबर आपने पूरा महीना काम करा है. सो मीन्स दैट अमाउंट ऑफ इनकम हैज बिकम ड्यू but not yet received. So outstanding income वो होती है which has become due but not yet received, and you have a legal right to receive it immediately from the other party. So this is outstanding income. चाहे outstanding income हो या outstanding expense हो, so दोनों का meaning same रहेगा in terms that either the expense or the income has become due but not yet received. Now, second term is accrued income. Accrued income means the amount which has been earned but not yet due. Earned but not yet due. The accrued income is calculated on day-to-day basis and there is no legal right to force the other party to pay it immediately. Suppose the firm has invested 50,000 in 12% debentures. Interest is payable half yearly on 30th June, December respectively. The firm closes its books on 31st March. Now, if the interest has not been paid by the company for the half year ending 31st December, even on 31st March, it is a case of outstanding interest, but interest for 3 months, January to March, is accrued in the sense it's simply earned but not due or receivable. So basically, students, accrued income means the income which has been earned but not yet received. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी कोई इन्वेस्टमेंट करा है एंड देन उस पे आपको इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, राइट, उस पे आपको इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है बट अभी तक आपको मिला नहीं, सो दैट इज एन अक्रूड इनकम. अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड. So let's talk about now about the manufacturing account. So basically students, हमारे जो एग्जाम में आएगा, we will get questions to prepare trading account and P&L account. Manufacturing account बहुत rare cases में आएगा, but still we will discuss about it. Manufacturing account क्या होता है? Many business entities engage in manufacturing activities, and this involves the purchasing of raw material and incurring labor and other costs in converting the raw material into
फिनिश गुड्स। सो बेसिकली बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। सो उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है टू ascertain द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड। जब हमें कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड कैलकुलेट करनी होती है, so then we prepare the manufacturing account before preparing the trading account. So trading account बनाने से पहले हम manufacturing account prepare करते हैं when we want to know about the cost of producing a good. Okay, students. So cost of producing the good जब हमें calculate करनी होती है, then we prepare the manufacturing account. So manufacturing account में हम details डालते हैं regarding the opening stock, हमारी क्या purchases थी, carriage and wood, direct labor expenses, direct expenses, factory rent, fuel, factory insurance, depreciation on factory building. एंड इन द क्रेडिट साइड हम शो करते हैं रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस। तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर जो होती है वो होता है कॉस्ट ऑफ द गुड्स ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट। सो जब हमें कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड कैलकुलेट करनी होती है देन वी प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमने डिस्कस कर लिया। We discussed about the P&L account. We have also talked about the manufacturing account. So the last section is balance sheet. So हम सबसे पहले trading account बनाते हैं, then P&L account बनाते हैं, and in the last we do the balance sheet. So balance sheet is the position statement of the firm. Balance sheet हमें बताती है about the assets and the liabilities जो firm के पास है। तो this statement of assets and liabilities on the closing date of the given accounting period is known as balance sheet. Now there is a classification of assets. आपकी information, आपकी knowledge के लिए assets बताए गए हैं कि different types के होते हैं. We have current assets, we have liquid assets, then we have current assets हमारे वो assets हो गए which can be easily converted into cash. So liquid assets हमारे वो वाले assets हो गए which can be easily converted more than the current assets. So हमारे liquid assets में हमारे सारे current assets आएंगे except the stock, except the inventory because inventory बहुत time लेती है to convert it into cash, right? And then if there are any prepaid expenses, कोई आपने prepaid अपने expenses पे करे हुए already जो आपने अपने current assets में दिखाए हुए हैं, so they are not part of the liquid assets. Then assets में हमारे investments आती हैं, fixed assets आते हैं, tangible fixed assets आते हैं, intangible fixed assets आते हैं, wasting fixed assets आते हैं, fictitious assets, and then we have contingent assets. So let's talk about the wasting fixed assets. ये कौन से assets होते हैं? These are the assets which are used up or consumed in the course of working. So wasting fixed assets हमारे वो assets हो गए जो हम टोटल कंज्यूम कर लेते हैं काम करते वक्त। जैसे अगर आपके पास कोई माइंस हैं, ऑयल वेल्स हैं, सो दीज आर वेस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स जिनकी 100% कंजम्पशन हो जाएगी when we use them. So oil wells है, आप सारा तेल निकाल लोगे wells में से, so these are wasting fixed assets. Then we have fictitious assets. So fictitious assets are fake assets. ये assets नहीं होते, इनको सिर्फ हम asset side में show करते हैं because they appear in the asset side simply because of a debit balance in a particular account not yet written off. So basically ये एक फिक्टिशियस एसेट्स है जो एसेट्स होते नहीं है, बस इनको हम अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं बिकॉज ये कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिनका हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है इन पीएनएल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सो ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को अभी हम राइट ऑफ नहीं कर रहे इस साल, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस है और इसको हम फिक्टिशियस एसेट्स में शो करते हैं। देन वी हैव कंटिंजेंट एसेट्स।
So contingent assets which depends upon happening of a certain event. For example, if that event happens, the asset becomes available, otherwise not. For example, sale agreement to acquire some property. So अगर जब agreement होगा then only we will acquire that property, तभी हम अपनी books में उसको asset show करेंगे. Hire purchase contracts, uncalled share capital of a limited company. So, in the absence of any legal right to the properties at that time, these properties are recognized only as contingent assets. For example, students, अगर कोई insurance claim है, तो जब तक claim आपका पास नहीं होगा, आप उसको अपना asset नहीं declare कर सकते insurance income को. Contingent assets हमारे वो assets होते हैं which depends upon the happening of a certain event, right? So अब जो हमारा topic है वो है adjustments and these are very important. हम very slowly एक एक adjustment के treatment को discuss करेंगे before proceeding with the question. So let's start with the adjustments. So let's start. Number one adjustment is of closing stock. So closing stocks, students जो one thing to note is कि जितनी भी हमारी adjustments होंगी उनके दो impact होंगे. Adjustment है तो दो effect हमेशा होंगे, dual effect always. So अपने mind में हमेशा ये बात रखना कि अगर कोई adjustment हमें given है, so it will have two effects. राइट अगर हमारी अब फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक सो क्लोजिंग स्टॉक को हम सबसे पहले अपने ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं इन द क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट के the second effect of closing stock is in the balance sheet हमारे एसेट साइड में बैलेंस शीट में हम शो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से हर एडजस्टमेंट को अंडरस्टैंड करना है एंड जो भी एडजस्टमेंट आप चाहते हो मैं दोबारा रिपीट करूं देन यू कैन नोट इट डाउन एंड लास्ट 10 मिनट्स में आप दोबारा बोलना एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन right second adjustment is outstanding expenses so outstanding expenses क्या होते हैं which has become due but not yet paid आपके कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं आपने सैलरी पे करनी है अपने एम्प्लॉइज की अगर हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी सो इट मींस वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है आपके लिए वो ड्यू हो चुकी है सैलरी बट आपने अभी तक पे नहीं करी फॉर एग्जाम्पल दिसंबर मंथ की सैलरी अगर आपकी कंपनी है आपकी जो एम्प्लॉइज है उनकी आपने सैलरी पे नहीं करी फॉर दिसंबर मंथ सो वो ड्यू हो चुकी है बिकॉज उन्होंने सर्विसेज दे दी है दिसंबर मंथ के लिए राइट एंड स्टिल आपने पेमेंट नहीं करी सो इट्स एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर यू सो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर सैलरी आ रही है राइट तो आप ये जो एक्सपेंस है फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी तो दिस विल बी एडेड आप ऐड करोगे इसको पीएनएल अकाउंट में एंड देन सिंस ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है अभी तक आपने पे नहीं करी तो ये फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है तो इसका सेकंड इम्पैक्ट होगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ओके स्टूडेंट्स थर्ड एडजस्टमेंट इज प्रीपेड एक्सपेंस सो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एसेट है बिकॉज हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में एंड ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में हम इसको अगर हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल प्रीपेड रेंट है तो हम इसको पीएनएल में से डिडक्ट करेंगे जो भी हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे वो लेस करेंगे बिकॉज ये प्रीपेड है हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो हम उसको डिडक्ट करेंगे बिकॉज पीएनएल में सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं आउटस्टैंडिंग कुछ भी होगा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगी तो वो एड बैक होंगे एड प्रीपेड हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं सो दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्सपेंसेस नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अगर आपको
एडवांस इनकम रिसीव हो चुकी है, सो इट मींस आपको पहले से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर 2022 की इनकम रिसीव हो चुकी है, सो पीएनएल में से आप उसको रिड्यूस करोगे, डिडक्ट करोगे, बिकॉज हम पीएनएल में सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस शो करेंगे। एडवांस इनकम आ चुकी है तो इट रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू tells to tell about the current year profit और current year loss। तो current year की transactions ही हम record करेंगे अपने trading and P&L account में। अब now income received in advance, तो आपको already advance में income receive हो चुकी है, so it will be shown on the liability side। आपको एडवांस में इनकम रिसीव हो चुकी है, आपको सर्विसेज अभी अपनी पे करनी है। आपको एडवांस सैलरी मिल चुकी है, एडवांस आपको सैलरी मिल गई है, बट आपको तो अभी अपनी सर्विसेज देनी है, सो इट इज अ लाइबिलिटी फॉर यू। accrued income is income earned but not yet received। आपने अर्न कर लिया बट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई, सिंस यू हैव अर्नड इट, आपने अर्न कर ली है तो वो आपके इनकम में ऐड होगी एंड इट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड, बिकॉज ये अक्रूड इनकम है, आप इसको अर्न कर चुके हो बट बस आपको मिली नहीं है, ड्यू हो चुकी है बट नॉट येट रिसीव्ड। Bad debt से, so bad debts are added in the P&L account। P&L account में डेबिट साइड में आप बैड डेट शो करोगे, और इन द बैलेंस शीट क्या इम्पैक्ट होगा? जो हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स में से हम रिड्यूस कर देंगे बैड डेट, सो हमें पता लगेगा दैट हमारे पास नेट डेटर्स कितने हैं, डेटर्स लेस द बैड डेट्स। Now, important point, provision for doubtful debts on debtors। So जब भी हम provision create करते हैं हमारे doubtful debts के लिए, so new reserve minus old reserve is the final figure। So जब भी हमें provision create करना होगा तो हम इसमें ध्यान रखेंगे new reserve कितना है हमारे पास, कितना हमने बनाया है, कितना हमारे पास old reserve था, and the final figure। सो जो भी प्रोविजन होगा वो हम रिड्यूस करेंगे फ्रॉम द नेट डेटर्स। डिडक्ट न्यू रिजर्व फ्रॉम डेटर्स ऑन एसेट्स। सो एसेट साइड में जो भी हमारे डेटर्स होंगे उसमें से हम रिड्यूस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स। सो एक इम्पैक्ट प्रोविजन का आएगा पीएनएल अकाउंट में, अनदर इम्पैक्ट विल कम अंडर द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी सेम है। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अगर हम डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं इसके लिए प्रोविजन है, तो ये भी हम पीएनएल अकाउंट में शो करेंगे and this amount will also be deducted from the debtors। so asset side में debtors में से हम सबसे पहले bad debts reduce करेंगे तो net debtors आएंगे। net debtors में से हम provisions less करेंगे, provision for अगर हमने bad debts बनाया है, doubtful debts, तो वो reduce करेंगे। अगर कोई provision for discount on debtors है तो उसको भी reduce करेंगे। अगर डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है तो ये भी पीएनएल अकाउंट में आएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एंड क्रेडिटर्स का के लिए जो भी हमारा सेकेंड इम्पैक्ट होगा, सो इट विल कम अंडर द लाइबिलिटी साइड। देन इफ डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट भी पहले पीएनएल में डेबिट साइड एंड देन हम अपने एसेट साइड में से एसेट को रिड्यूस करेंगे, एसेट माइनस द डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन लोन। अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो पीएनएल में क्रेडिट साइड में आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम है, आप वहां दिखाओगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट है, तो हम इसको, हमारे पास अगर एसेट है इन्वेस्टमेंट का तो उसमें ऐड कर देंगे, ऐड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट। अनइंश्योर्ड गुड्स अगर हमारे लॉस्ट हो चुके हैं, दे आर अनइंश्योर्ड, तो शो कॉस्ट ऑन क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, शो कॉस्ट ऑन डेबिट ऑफ पीएनएल अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में नहीं आएगा, इसके दोनों इम्पैक्ट ट्रेडिंग में आएगा
एंड पीएनएल अकाउंट में आएगा। अगर आपके गुड्स लॉस्ट हो गए, गुम गए, सो आप अपने पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो करोगे अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट, राइट। एंड सेकेंड इम्पैक्ट होगा आपका डेबिट साइड ऑफ द पीएनएल अकाउंट। 13th adjustment is goods lost insurance claim due. So जब भी आपके goods lost होंगे एंड आपका इंश्योरेंस क्लेम ड्यू है, तो सबसे पहले आप क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओगे गुड्स लॉस्ट फुल कॉस्ट पर, ठीक है। देन आप पीएनएल अकाउंट में अपना क्लेम शो करोगे कि इतने के तो आपके गुड्स गए। फॉर एग्जांपल गुड्स लॉस्ट बाय फायर, 5000 के गुड्स लॉस्ट हुए, तो सबसे पहले आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 5000 के लॉस बाय फायर, स्टॉक लॉस बाय फायर शो करोगे। देन इन द पीएनएल अकाउंट में आप क्लेम शो करोगे कि कितने का क्लेम आपको रिसीव होगा। देन जितने का भी क्लेम आपका ड्यू है वो आप अपना एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में भी शो करोगे। फॉर एग्जाम्पल 4000 के गुड्स लॉस बाय फायर है एंड आपको 2000 का क्लेम रिसीव होगा, ड्यू होगा, तो पीएनएल में आप उतना दिखाओगे। एंड जो भी आपका क्लेम ड्यू है दैट विल आल्सो कम इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। गुड्स गिवन अवे एज सैंपल, तो अगर जब सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में गुड्स जाते हैं तो आप उनको अपने परचेजेस में से लेस करोगे डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, and it will also be shown in the debit side of the P&L account. So goods given as sample purchases में से less होंगे and next impact होगा debit of the P&L account. Goods taken by proprietor, जब भी students drawings होंगी तो credit side the trading account में goods taken by proprietor वहां शो करेंगे एंड देन डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो सिंस इट्स अ ड्राइंग, ये प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ करे हैं तो ये डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में शो करेंगे। अनरिकॉर्डेड परचेजेस, कुछ परचेजेस थी जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी, सो ऐड टू परचेजेस एट एज पर ट्रायल बैलेंस। सो जो भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक परचेजेस हैं वहां पर वापस ऐड बैक करो। एड टू क्रेडिटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस, अगर आपने अनरिकॉर्डेड परचेजेस हैं, आपने कुछ क्रेडिट परचेज करी है तो आप अपने बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स भी इंक्रीज करो एंड देन अगेन आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस भी इंक्रीज करो। अनरिकॉर्डेड सेल्स हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाओ, अगर क्रेडिट सेल्स हैं तो आप अपने डेटर्स को भी इंक्रीज करो। Capital expenditure treated as a revenue expenditure. Deduct from expense account, add to asset account. अगर आपका कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था जिसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीनरी परचेज करी थी एंड आपने उसको शो कर दिया दैट आपने कोई रिपेयर पे एक्सपेंस करा है, तो क्या करोगे आप अपने एक्सपेंस अकाउंट को रिड्यूस करोगे बिकॉज रिपेयर्स तो हुई नहीं, एक्सपेंसेस तो हुए नहीं, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स। व्हेनेवर वी एक्वायर एन एसेट तो आप अपने एसेट को इंक्रीज करेंगे, राइट। Next adjustment is bills receivable dishonored. अगर आपको किसी ने BR बिल रिसीवेबल इशू करा था, इट मींस दैट ऑन अ सर्टेन डेट आपको इतना अमाउंट रिसीव होगा। नाउ दैट हैज बिकम डिसऑनर्ड, आपको अब वो अमाउंट रिसीव नहीं होगा। सो तो आप एड बैक करोगे डेटर्स। आपने जब आपको बिल रिसीव हुआ BR तो आपने क्या करा, आपने डेटर्स को कम करा एंड आपने एक और लाइन आइटम बनाई अपने एसेट्स में, बिल रिसीवेबल की एंट्री करी। नाउ दैट हैज बिकम डिसओनर्ड। सो आपके अब जो डेटर्स हैं वो अब वापस से इंक्रीज हो गए हैं बिकॉज जो बिल रिसीवेबल से मनी आना था दैट हैज बिकम डिसओनर्ड, तो आप अपने डेटर्स को इंक्रीज करोगे। सेकेंड इज डिडक्ट फ्रॉम BR। सो बिल रिसीवेबल जो है आप उसको लेस कर दोगे कि बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, उसको खत्म करा आपने, कैंसिल आउट करा एंड डेटर्स फिर से इंक्रीज करे। सिमिलरली बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, सो बिल्स पेबल डिसऑनर्ड से आपके वापस से क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए एंड डिडक्ट फ्रॉम बिल्स पेबल सेम। So let's
डिस्कस फर्स्ट द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। सो जब भी हमारे को कोई इनडायरेक्ट इनकम रिसीव होगी, इनडायरेक्ट गेन होगा, सो वो क्रेडिट साइड में आएगा पीएनएल के प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। एंड whenever there's a profit on sale of assets, so this will be deducted, written down value from asset account. So asset में से हम depreciation लेस करते हैं, और अगर हमारे को कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है तो वो भी हम रिड्यूस करेंगे। अगर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है तो ये लॉस है, इट्स एन एक्सपेंस, तो डेबिट साइड आएगा पीएनएल में, एंड दिस विल आल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट अकाउंट। डेफर्ड एक्सपेंस क्या होते हैं? जिनका बेनिफिट for more than one accounting period है, so this amount shall be written off। तो P&L में हम दिखाएंगे, राइट ऑफ करेंगे ये एक्सपेंस, एंड हमारे एसेट साइड में भी ये अमाउंट शो होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। कैपिटल रिसीव्ड ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीट। सो स्टूडेंट्स, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? हमारी डेली नेचर के जो भी हमारे गेन्स होते हैं, इनकम होते हैं, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट, राइट। एंड कैपिटल रिसीट स्टूडेंट्स क्या हुई? सो capital receipts are the income that we gain, that we earn from the sale of an asset। आपने कोई फॉर एग्जाम्पल मशीनरी सेल करी, नाउ इट हैज बीन ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीट। लाइक आपने मशीनरी सेल करी और आपको 10 लाख रुपीज रिसीव हुए, सो दिस हैज बीन ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीट। आपने वहां पर गलत एंट्री करी हुई है, 10 लाख रुपीज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, from sale of goods, तो in that case add to liability और deduct from asset account। तो आप अपने जो आपने asset account में था उसको less करोगे, then deduct from income account। so दो ये इसके impacts हैं। So one question, we have 10 minutes before the doubts session। so एक question आज discuss करते हैं, उससे ज़्यादा हमारे को clarity होगी, understanding होगी to prepare the final account। so whenever the question says prepare final account, so we know we have to prepare 3 accounts। हमें पता है we have to prepare the trading account, then we have to prepare the P&L account, and then we will do the balance sheet। so students, हमारे पास एक full fledged question है। हमारी अप्रोच ये होगी कि हम साथ के साथ डिस्कस करते जाएं कि कौन सी फिगर हमारी कैपिटल में आएगी, कौन सी फिगर हमारा अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, विच अमाउंट विल कम अंडर द पीएनएल अकाउंट, एंड विच अमाउंट विल कम अंडर द बैलेंस शीट। And last 10 minutes will be for your doubts and queries। So first of all, students, see illustration 7 of the book. Saroj Khanna has been trading for some years in food grains. The following list of balances has been extracted from her ledger as on 31st March 2017, the end of recent financial year. So students, first of all, we have capital, 83,887. Then we have sales. Then we have creditors, trade creditors, return outward, provision for bad debts, discount allowed, discount received, purchases, return inward, carriage outward, drawings, carriage inward, rent, rate and insurance, heating and lighting, postage, stationery and telephone, advertisement, salary and wages, bad debts, cash in hand, cash at bank, stock, trade debtors, fixture and fittings, provision for depreciation, fixture and fitting at the end 31st March 2017, depreciation stock as of 31st March 2017। So students, basically हम 1st April 2016 to 31st March 2017, मतलब 16 and 17 का accounts prepare कर रहे हैं, 2016 to 2017। First of all, let's
डिस्कस। कैपिटल हमें पता है, इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, सो कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगी। सेल्स कहाँ शो होगी? सेल्स विल कम अंडर द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेड क्रेडिटर कहाँ जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मीन्स रिटर्न्स को बाहर जाना, आउटवर्ड मीन्स परचेजेस रिटर्न, तो ये हमारे ट्रेडिंग का पार्ट है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। डिस्काउंट अलाउड ऑल्सो इट्स अ पार्ट ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज ये डायरेक्ट हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये इनडायरेक्ट इनकम हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ पीएनएल में क्रेडिट साइड। परचेजेस विल कम अंडर द trading account. Return inward will also come under the trading account because return inward हमारी sales return है। Carriage outward, carriage outward है तो ये हमारा P&L का part है। If there is a carriage inward, so carriage inward will come under the trading account. Drawings, drawings हमारी कहाँ जाएंगी? कैपिटल में ऐड होती हैं ड्राइंग्स हमारी बैलेंस शीट में। Carriage inward will come under the trading account. रेंट रेट एंड इंश्योरेंस, ये सारे स्टूडेंट्स हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो पीएनएल का पार्ट है। रेंट रेट एंड इंश्योरेंस, हीटिंग एंड लाइटनिंग, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी एंड वेजेस, ये सारे हमारे बैड डेट्स, दिस विल कम अंडर द ट्रेडिंग अकाउंट। Trading account में this will come under the P&L account. Now cash in hand and cash at bank ये हमारे assets है, so this will come under the balance sheet. Stock asset first table, so opening stock है, trading का part है. Debtors come under the balance sheet. Fixture and fitting at cost, जो हमारे fixture and fitting furniture ये हमारे लिए asset है, तो it will come under the balance sheet. डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन हमारा पीएनएल का पार्ट है, इट्स एन एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट भी है और ये हमारा दो इम्पैक्ट्स हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमारा सी स्टूडेंट्स, अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारे को ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ये इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये लेजर में ही हमारे को क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। सो इन दैट केस हमारे पास इसके दो इम्पैक्ट नहीं होंगे, इसका सिर्फ वन इम्पैक्ट ही हम शो करेंगे। टू इम्पैक्ट्स हमारी सिर्फ एडजस्टमेंट्स के होते हैं। सो लेट्स डिस्कस द एडजस्टमेंट्स। First adjustment is insurance have been prepaid. So प्रीपेड एक्सपेंस है हमारे पास, तो जब भी हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड मतलब हम पहले से पे कर चुके हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस है 1120। सो हमारे पास इंश्योरेंस कितना गिवन है? सो स्टूडेंट्स आप देखो हमारे पास पीएनएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंस है रेंट रेट एंड इंश्योरेंस, एंड दिस इज आई थिंक 11,010। सो इसमें प्रीपेड है 1120, सो हम लेस कर देंगे बिकॉज ये प्रीपेड है, ये हम पहले से पे कर चुके हैं, पहले से पे कर दिया नेक्स्ट ईयर का, दिस अमाउंट इज प्रीपेड, सो दिस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द करंट ईयर एक्सपेंस। और इस प्रीपेड अमाउंट को हमारे लिए ये एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा करंट एसेट होता है, तो इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे। सो ये अभी मैं आपके साथ ओरली डिस्कस कर रही हूँ, अभी हम जब इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, जब इसका सोल्यूशन देखेंगे, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का वन ट्रीटमेंट हो गया कि हम इसको पीएनएल अकाउंट में से डिडक्ट करेंगे, एंड देन दिस अमाउंट ऑफ 1120 विल बी शोन एज इन current asset in the balance sheet. Next is heating and lighting expenses accrued by 1360. Students, accrued expense और हम कहें outstanding expense, the both means the same thing. Accrued income or outstanding income both means the same thing. Heating and lighting expenses accrued by 1360. So outstanding expense है, accrued बोलो या outstanding बोलो, one and the same thing. Outstanding expense means due हो चुका है but आपने pay नहीं करा, so since due हो चुका है तो this will be added back. Heating एंड लाइटनिंग एक्सपेंस, हीटिंग एंड लाइटनिंग एक्सपेंस हमारे पास है 2410,
So this amount has become due but not yet paid. So this 1360 will be added in the P&L account. First impact is prepaid लेस होगा तो आउटस्टैंडिंग ऐड होगा एंड सिंस ये हमें पे करना है ड्यू हो चुका है बट पे नहीं करा सो दिस विल बी अ लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट. थर्ड इज रेंट हैव बीन प्रीपेड अगेन अ प्रीपेड एक्सपेंस सो हम ये रिड्यूस करेंगे पीएनएल में से और बैलेंस शीट में एसेट्स में शो करेंगे. Fourth adjustment, very important. Provision for bad debt is to be adjusted so that it is 3% of trade debtors. So हमारे को provision create करना है bad debts का. कितना बनाना है 3% of trade debtors. So students हमारे पास trade debtors हैं कितने 2450 24,500 के हमारे पास ट्रेड डेटर्स हैं. इसका 3% when we calculate 3% of 2450 24,500 so this comes out to be 3% this is 735. So आपको एक provision create करना है. So provision will be shown in the P&L account. P&L account में डेबिट साइड में हम शो करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड बैलेंस शीट में हम ट्रेड डेटर्स 24,500 में से डिडक्ट करेंगे प्रोविजन ऑफ 3%. राइट. सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की एडजस्टमेंट. सो अब हम प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रोफॉर्मा होगा वी विल राइट about the Saroj Khanna trading and P&L account for the year ended because trading and P&L account हम पूरे year का बना रहे हैं. So for the year ended when we will prepare the balance sheet तो हम balance sheet में लिखते हैं as at 31st March because balance sheet हम same date as it's उस date पर बना रहे हैं. Whereas trading and P&L account is for the entire year and balance sheet is for that particular point of time. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे ओपनिंग स्टॉक. आप देखो स्टॉक एज इट 1 अप्रैल 2016 ओपनिंग स्टॉक है 15,654. सो दिस इज करेक्ट. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक. देन वी हैव परचेजेस. हमारे पास परचेजेस हैं 1,35,680 की परचेजेस हैं. परचेजेस में से हम लेस करेंगे परचेजेस रिटर्न जिनको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं 13,407. सो 1,35,680 में से 13,407 हमने परचेजेस लेस करी ओपनिंग स्टॉक में से. देन हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस में है कैरेज इनवर्ड. यस हमारे पास कैरेज इनवर्ड है. कैरेज इनवर्ड हमारा ट्रेडिंग का पार्ट होता है 11,830. राइट. नेक्स्ट इज हमारे पास सेल्स है. we have sales of 2,59,870. क्या हमारे पास सेल्स रिटर्न है? इज देयर एनी सेल रिटर्न? Is there any return inward? Yes, we have return inward. हमारे पास sales return भी है क्वेश्चन में 4,562. So ये हम ट्रेडिंग में से रिड्यूस करेंगे. रिटर्न इनवर्ड है हमारी 5,624. So 5,624 हमने रिड्यूस करा तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके आ गया 1,04,489. So now we have the gross profit. $1,04,489. So now we will transfer this gross profit to the P&L account. So हमने यहाँ पर gross profit BD transfer करा 1,04,489. So अब हमारे पास जितने भी indirect expenses हैं और indirect income है वो हम show करेंगे P&L में. सबसे पहले credit side में देखते हैं indirect incomes कौन सी है हमारे पास. We have only one, discount received. So हम discount received को show करेंगे 1750 in the credit side of the P&L account. Now जितने भी हमारे indirect expenses हैं वो हमारे आ जाएंगे debit side. Salary and wages, discount allowed, carriage outward, rent
rates and insurance. So students, अब हमारे पास सबसे पहली adjustment थी insurance have been prepaid 1120 और rent rates and insurance है हमारे पास 25,973. तो इसके under we have a prepaid insurance of 1120, so we will reduce this prepaid insurance 1120 and then रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस. तो इसमें रेट भी कवर्ड है, प्रीपेड रेट है 5435. सो हम साथ में ही दोनों को रिड्यूस करेंगे. रेंट रेट एंड इंश्योरेंस हमारे पास कंबाइन है और दोनों के इंश्योरेंस भी प्रीपेड है और रेट भी प्रीपेड है. सो 1120 प्लस 5435. सो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने लेस कर दिए. नेट हमारे पास रेंट रेट एंड इंश्योरेंस आ गए. देन हमारे पास हीटिंग एंड लाइटनिंग एक्सपेंस है 11020. इसकी एडजस्टमेंट है कि हीटिंग एंड लाइटनिंग एक्सपेंसेस इज अक्रूड. सो स्टूडेंट्स, किसी को डाउट भी था पहले आया कि आउटस्टैंडिंग इन अक्रूड में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है. चाहे आप बोलो अक्रूड एक्सपेंस और बोलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इट मींस द सेम. बस टर्म डिफरेंट लेते हैं कि जब भी हमारे पास इनकम की बात करेंगे ना तो हम बोलेंगे अक्रूड इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड. सो इनकम के लिए हम अक्रूड टर्म यूज करते हैं, एक्सपेंस के लिए मोस्टली हम टर्म यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग. बट अब देखो इस केस में एक्सपेंस के लिए भी अक्रूड यूज करा हुआ है. सो देयर इज नो डिफरेंस एज सच, दोनों सेम है. आउटस्टैंडिंग इनकम बोलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का हो, या अक्रूड एक्सपेंस का हो, या अक्रूड इनकम का हो, इट मींस द सेम. अक्रूड इन आउटस्टैंडिंग मींस द सेम. दोनों का यही मीनिंग है, अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड. ड्यू हो चुकी है बट मिली नहीं. सो इन दैट केस आउटस्टैंडिंग जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे हम उनको ऐड बैक करेंगे बिकॉज वो ड्यू हो चुके हैं. दैट रिलेट्स टू द करंट ईयर. एंड सेकेंड इम्पैक्ट क्या होगा? दिस विल कम अंडर द बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड. देन हम सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन. अब स्टूडेंट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा कैसे आया? 3% ऑफ द डेटर्स. हमारे पास डेटर्स हैं ट्रायल बैलेंस में, डेटर्स हैं 24,500 और एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमारे को 3% का प्रोविजन बनाना है विच इज 735. बट इन द क्वेश्चन वी हैव अ प्रोविजन. क्वेश्चन में हम देखते हैं तो हमारे पास ओल्ड प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. सी स्टूडेंट्स, हमारे पास ओल्ड प्रोविजन गिवन है क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 512. सो जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन. न्यू प्रोविजन स्टूडेंट्स हमारे पास है 735 का, राइट, लेस द ओल्ड प्रोविजन. सो अब हमारे पास नेट प्रोविजन कितना हुआ? ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन करके जो भी हमारा बैलेंस होगा अमाउंट को हम पीएनएल में दिखाएंगे. स्टूडेंट, इसको प्रोविजन को समझने के लिए एक बहुत अच्छा एक आपके लिए एक एग्जाम्पल है. तो जो भी हमारे को एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन होगी, एडजस्टमेंट में हमें बताया कि हमें प्रोविजन क्रिएट करना है 3% ऑफ डेटर्स का. मतलब हमें 3% ट्रेड डेटर्स का एक अपने पास एक प्रोविजन बनाना है विच इज 735, राइट. सो हमारे पास 735 अमाउंट होना चाहिए प्रोविजन में. ऑलरेडी कितना हमने बनाया हुआ है हमारे लेजर में? 512. सो 735 का हमारे को पिगी बैंक में सपोज प्रोविजन डालना है 735. ऑलरेडी कितना बना हुआ है? 512 का. सो बैलेंस कितना और डालें कि हमारा प्रोविजन 735 हो जाए? सो दैट अमाउंट इज दोनों का डिफरेंस, इसलिए हम न्यू माइनस ओल्ड करते हैं विच इज 223. बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे पास टोटल प्रोविजन कितना हो? 735. ऑलरेडी बना हुआ है 512 का, ऐड कितना और न्यू प्रोविजन बनाएंगे 223, सो दैट हमारे पास टोटल प्रोविजन हो 735. सो हम बैलेंस जब करेंगे तो वी विल गेट अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6,367. नाउ अब बैलेंस शीट बनाएंगे. बैलेंस शीट में कैपिटल हमें गिवन है, उसमें ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट. जो भी हमारी ड्राइंग्स हैं उसको लेस करेंगे.
ट्रेड क्रेडिटर्स, और जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे जिनको हमने ऐड करा पीएनएल में, आउटस्टैंडिंग है मींस ड्यू हो चुकी है बट पे नहीं करा तो मींस फर्म के लिए लाइबिलिटी है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी साइड में, और जो भी हम एक्सपेंसेस प्री पे कर चुके हैं पहले से तो वो हमारे लिए एसेट रहेंगे। एसेट साइड में आप देखोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड डेटर्स हमारे को है, ट्रेड डेटर्स में से लेस प्रोविजन करा, नेट डेटर्स आ गए, स्टॉक इन हैंड, फिक्सचर्स एंड फिटिंग, फिक्सचर्स एंड फिटिंग हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, और इसके साथ ही हमारे को लेजर में ही डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन है, डेप्रिसिएशन 12074, and then we have fixtures and fitting at cost 1,02,990 का हमारे पास फिक्सचर्स है मींस फर्नीचर है, और डेप्रिसिएशन है 63,020, तो हम उसको रिड्यूस कर देंगे, 39,970 हमारे पास नेट एसेट्स आ गए। सो जब आप टोटल करोगे यू विल गेट द लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड इक्वल। सो स्टूडेंट्स बेसिकली ये एक फर्स्ट स्टार्टिंग क्वेश्चन था फॉर फाइनल अकाउंट्स। नाउ फॉर योर होमवर्क, आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज फाइनल अकाउंट्स में यही मेन चीजें हैं, आपको ट्रेडिंग बनाना है, पीएनएल बनाना है, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट विद ऑल द एडजस्टमेंट। इन द नेक्स्ट क्लास मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जिसका लेवल थोड़ा सा इससे अप होगा, जिसमें ज्यादा एडजस्टमेंट्स आएंगी। सो बेसिकली बाय द नेक्स्ट क्लास आपका फाइनल अकाउंट्स चैप्टर ओवर हो जाएगा, बिकॉज फाइनल अकाउंट्स से यही मेन है, आपको ये तीनों अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं विद ऑल द एडजस्टमेंट्स। सो नाउ 10 minutes फॉर योर डाउट्स, आपकी जो भी क्वेरीज है आप पोस्ट कर दीजिए एंड आई विल आंसर दोस। The timing for the class is same 9:30 to 10:30. Our next class will be day after tomorrow. Yes, SL study material is very useful. So you can also go to the website. वहाँ पर CBCS के अंदर financial accounting का study material भी है. You can download those PDF. Students, I don't have any WhatsApp group, so please don't contact regarding that. I have not created any group. So, purpose of accounting standards, Renu, is because they are the guidelines. They are the fundamentals जो हमारे accounting standards हैं वो हमारे को एक guidelines है, वो हमारे को guide करते हैं कि हमारी जो accounting है वो हमें कैसे करनी है. For example, accounting standard one is disclosure of accounting policies. So जब हम उस accounting standard को पढ़ेंगे उसमें हमें सारी information होगी detail में कि इस accounting standard में हमारे को क्या क्या पॉलिसीज डिस्क्लोज करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको डिस्क्लोज करना नेसेसरी है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे लिए गाइडलाइंस है, हमारे लिए बेस है अकाउंटिंग के लिए। सो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे डायरेक्ट है या नहीं इनडायरेक्ट है, तो आपको एक्सपेंस के नाम से ही समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेजेस वेजेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंस में कंसिडर करते हैं, वेजेस एंड सैलरी अगर हमें गिवन है, अगर सैलरी एंड वेजेस है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जो भी खर्चे आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं जो हमारे ट्रेडिंग का पार्ट होना चाहिए, जब हमारा गुड्स ट्रेडिंग से निकलकर फैक्ट्री से निकलकर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाता है, या हम उसको बोलें उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में जाता है, तो वो जो भी एक्सपेंसेस हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर फैक्ट्री रेंट है या हमारे जो भी एक्सपेंसेस हमारे गुड्स को बिजनेस प्रेमाइसेस तक लेके आने तक के भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो डायरेक्ट है, जो कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। सो जो हमारे कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, सो वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं।
सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बता दिया। आई नो जो लिंक मैंने शेयर करा है उसमें सारे पेजेस नहीं आ रहे, ओनली द फर्स्ट पेज इज कमिंग। डोंट वरी, आई विल री शेयर द लिंक इन द नेक्स्ट क्लास में दोबारा से मैं लिंक दे दूंगी, जिसमें आई विल ट्राई कि सब सारे पेजेस शो हो। So book that I am referring is J.R. Monga, Basic of Financial Accounting. Book is J.R. Monga, Basic of Financial Accounting. सो स्टूडेंट्स, अगर फैक्ट्री लाइटनिंग है या अगर सिर्फ लाइटनिंग लिखा है, अगर खाली लाइटनिंग है तो इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्टली आपको इनडायरेक्ट में ही डालना है। अगर इसको डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना होगा तो स्पेसिफिकली लिखा होगा फैक्ट्री लाइटनिंग, फैक्ट्री टैक्सेस। सो जो भी डायरेक्ट होंगे वो मेजर मेजर जो हमें पता है वो कैरेज इनवर्ड होता है, ऑक्ट्राई है, फ्रेट है, वेजेस है। सो दीज आर द बेसिक वंस, ठीक है। इसके अलावा अगर लाइटिंग है तो वो इनडायरेक्ट पीएनएल में ही जाएगी। अगर फैक्ट्री लाइटनिंग लिखा है देन ओनली यू विल क्लासिफाई इट इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपको बहुत स्पेसिफिकली बताया जाएगा अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड होना है तो। स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स आल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आप एसओएल की वेबसाइट में जाओगे, उसमें स्टडी मटेरियल में सीबीसीएस के अंडर स्टडी मटेरियल गिवन है, यू कैन डाउनलोड द फाइल्स। Yes, accrued income is an asset because accrued income क्या होती है? Earned but not receive। आप उस इनकम को अर्न कर चुके हो बट आपको अभी तक मिली नहीं, सो इट्स एन एसेट फॉर यू। अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है, मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम देन ऑल्सो अक्रूड इनकम बोलो या आउटस्टैंडिंग इनकम बोलो, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो फिर ये लाइबिलिटी है, बिकॉज ये एक खर्चा है आपके लिए जो आपने पे नहीं करा, ड्यू हो चुका है बट नॉट येट बीइंग पेड। So, students, it's not possible to cover the entire topic, entire book in 1 hour session. For example, आपका इतना बड़ा chapter है final accounts, so it will not be possible to cover each and every topic in 1 hour session. So I'm just picking up the important topic, important adjustments, जिसके base पर आप questions start कर सकते हो। Not just start, you can perform the questions as well. So that is jo part with the section, the part which I am skipping is an homework for you. So indirectly वो आपके लिए homework है। जो part miss कर रहे हैं, जो part जो topic हम touch upon नहीं कर रहे, आई एम ट्राइंग कि मैं बेसिक बेसिक जो भी इंपॉर्टेंट जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो पिक करूं, बट जो भी पार्ट मिस हो रहा है दैट इज इन होमवर्क फॉर यू। एंड फॉर टुडेज क्लास जो भी इलिस्ट्रेशंस अब आगे की हैं, वी हैव डिस्कस इलिस्ट्रेशन 7। सो नेक्स्ट जितनी भी इलिस्ट्रेशंस हैं आप स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो एंड लेट मी नो अबाउट योर डाउट्स। सिंगल एंट्री चैप्टर इज नॉट इन योर सिलेबस। थियोरेटिकली आ सकता है बट प्रैक्टिकली नॉट। Book, I have already told it to you, I am referring J.R. Monga. Students, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। जो हमारी बुक होती है उसमें बहुत सारा कंटेंट होता है जो हमारे नॉलेज के लिए होती है। सो फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू यू विल नॉट गेट क्वेश्चंस वेयर यू हैव टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आपको सिर्फ 3 अकाउंट्स ही बनाने होंगे, ट्रेडिंग, पे एंड बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हमारी होती है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट मींस ब्रांचेस मींस व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। वेयरएज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हमारे पास 2 बेसिस हैं जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं, कैश बेस एंड अक्रूवल बेस। Manufacturing account tells us
about the cost of producing good. जब हमें अपने goods की cost ascertain करनी होती है, cost जाननी होती है, cost of producing good के बारे में पता करना होता है, तो हम manufacturing account prepare करते हैं. Trading account में हमें पता लगता है क्या gross profit है और क्या gross loss है. Students, the recorded lectures will be uploaded after few weeks, so it will take time. So it's better कि आप अपने lectures attend करो. Recorded lectures की wait मत करो. Just don't miss the class. Recorded lectures काफी time बाद ही upload होंगे. I'm referring JR Monga. I will share the notes in the next class. Students, closing stock on the credit side of the trading account. So ये चीज जब हमें closing stock adjustment में given होगी तभी हम एडजस्टमेंट में होगी. स्टूडेंट्स, हमारे लेजर में जब क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, सिर्फ एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक होगा, तब इसके दो इम्पैक्ट होंगे. तब हम एक दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, अनदर इम्पैक्ट बैलेंस शीट में हम शो करेंगे हमारे करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक, राइट. बट अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था उसमें हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में नहीं था, हमारे लेजर में था. सो जब लेजर में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होगा तब उसका सिर्फ वन इम्पैक्ट होगा एंड दैट विल बी इन द बैलेंस शीट. तब हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो नहीं करेंगे. सो ऑक्ट्रा इज बेसिकली स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ चार्जेस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होते हैं. I think दो financial accounting classes है. So one is Hindi medium, another is English medium. So mine is English medium, but I'll try कि मैं इसको bilingual रखूँ, Hindi and English both में cover करने के. I'll try my best. So students, now it's optional to use the word to and by. I have just covered two theory chapters, basics of accounting, and this is the third chapter जो मैंने start करा है, and this is the first practical chapter. इससे पहले अभी तक हमने theory ही cover करी है. So I think I have covered most of your queries and most of your doubts. I know it's not possible to answer all of your doubts and queries. Book is JR Monga. Students, yes, calculator is allowed, and is JR Monga. You can buy this book and start practicing the question, Basic of Financial Accounting. Okay, students, so that's it for today's class. We have already exceeded our time limit. And so for homework, you have to practice the final accounts questions. And in the next class, you can message me the illustrations where you are facing the doubt and I will try to cover them up. So next class में भी हम यही try करेंगे, एक दो और important questions करेंगे, discuss करेंगे full-fledged questions of final accounts. So that's all for today's session. So practice as much as you can and thank you for your time and patience. Next class is day after tomorrow on 20th. Timing will be the same, 9:30 to 10:30. Thank you, students. Have a nice day.